why Christopher Nolan doesn't use CGI. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है बैक स्टेज बियर में। और क्रिस्टोफर नोलन को कौन नहीं जानता? ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मेकर्स इन द वर्ल्ड। ओपेनहाइमर की सक्सेस से हमें ये तो पता चल ही गया कि वो आज भी कितना रेलेवेंट है। उनके फिल्म मेकिंग प्रॉप्स के बारे में तुम सबको तो पता ही होगा, but when it comes to his personal life, Nolan is a very private person who doesn't give much away about his personal life. I mean, वो आज तक स्मार्टफोन यूज नहीं करते, तो समझ ही सकते हो वो कितना प्राइवेट रहते होंगे। बट कोई नहीं, हमने तुम्हारे लिए छानबीन करके नोलन के लिए ऐसे 12 फैक्ट्स खोज के लाए हैं जो शायद तुम्हें पता नहीं होगा। और पहले ही बता दूंगा, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है वो सच में तुम्हें चौंका देगा। चलो फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, he made his first film when he was 7। नोलन को बचपन में ही पता चल गया था कि उन्हें फिल्म मेकर बनना है। तभी तो बस 7 साल की उम्र में उन्होंने स्टार वॉर्स का होमाज बनाया था, जो स्टॉप मोशन एनिमेशन था। इसमें क्रिस्टोफर नोलन ने अपने छोटे भाई जोनाथन नोलन को कास्ट किया था, और फिर 11 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड कर ही लिया कि उन्हें फिल्म मेकिंग के वर्ल्ड में आना ही है। नंबर 2, he funded his first feature film। क्रिस्टोफर नोलन की पहली फीचर फिल्म फॉलोइंग थी, जो 1998 में आई थी, और इस फिल्म को नोलन ने खुद ही फंड किया था, which was around $6,000 at that time। नोलन इस वक्त जॉब कर रहे थे और वहाँ से जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट उन्होंने सीखा वो सभी इस फिल्म में लगा दिया। When we were making Following, I was working in the field of corporate videos. I was doing camera work and sound work for media training sessions for companies, and recording radio programs in the studio, that kind of thing. And I actually learned a lot doing that kind of video camera work. I learned a lot about going into an environment, using a couple of lights, setting up very fast, and then having to do something to a very rigorous schedule. And that was very much the production methodology we transferred over to the film. And all the salary he got became the budget of this film. But ज़्यादा बजट तो था नहीं, इसी के कारण फिल्म का कोई DOP भी नहीं था। And Nolan shot the film by himself. And to avoid the lighting and color grading aspects, उन्होंने इसे black and white में बनाने का सोचा। Choosing to shoot the film in black and white because I knew that the speed with which we were going to have to work, the conditions under which we were going to have to film a scene, to try and do that with color lighting and color photography, it would be very, very difficult to get anything acceptable, anything with any feeling of style. The nice thing about black and white is you eliminate one massive set of variables in terms of balancing the lights with the natural daylight that's around them and so forth. And so you're able to, just with a couple of lights, throw up some interesting lighting, get something that has a certain style to it. When I went into making bigger films, I had to hire a director of photography for the first time. For me, that was a source of great deal of concern because all of my filmmaking to that point had been me with the camera, directing through the lens. And it worked well for the narrative of this film. इसी के बाद ही उन्हें मेमेंटो जैसी मास्टरपीस बनाने का मौका मिला। नंबर 3, ब्रैड पिट वॉज ऑलमोस्ट इन मेमेंटो। टॉकिंग अबाउट मेमेंटो, तुम्हें पता है इस फिल्म में कौन हो सकता था? ब्रैड पिट। एक्चुअली हुआ ये था कि ब्रैड पिट इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने आए थे और उन्हें कहानी बहुत अच्छी लगी थी। He could have even starred in the lead role, but डेट्स ना होने के कारण उन्हें ये फिल्म मना करना पड़ा। उस वक्त नोलन को कोई जानता नहीं था, पर ब्रैड पिट के इंटरेस्ट के कारण फिल्म को काफ़ी अटेंशन मिला और फिल्म अच्छे से बन पाई। नंबर 4, his cameo in Memento। मेमेंटो में नोलन ने केमियो भी दिया था। No, he wasn't seen on screen or anything like that, but उन्होंने वॉइस ओवर दिया था। इस सीन को देखो, इसमें एक्टर ये लाइन अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे, तो पोस्ट प्रोडक्शन में नोलन ने ये खुद ही डब कर लिया। मैन, इट्स अ स्पॉट ऑन इम्प्रेशन, और किसी को पता भी नहीं चला। नंबर 5, he was not supposed to direct Interstellar। इंटरस्टेलर आज उनकी सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक है, पर क्या तुम्हें पता है इस फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्ट ही नहीं करने वाले थे, बल्कि स्टीवन स्पीलबर्ग को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का ऑफर किया गया था। एक्चुअली स्पीलबर्ग वाज अटैच्ड टू दिस फिल्म सिंस 2006, और उस वक्त बस 8 पेज का ट्रीटमेंट ही लिखा गया था। क्रिस के भाई जोनाथन नोलन को फिल्म का स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर किया गया, पर कुछ टाइम बाद स्पीलबर्ग ने फिल्म को छोड़ दिया। अब उनके कुछ कारण रहे होंगे, बट विद दिस द फिल्म वॉज लेफ्ट विथ नो डायरेक्टर। अब यहाँ तुम नेपोटिज्म बोलो या कुछ बोलो, पर जोनाथन नोलन ने अपने भाई का नाम रिकमेंड किया इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए।
and the rest, as we know, is history. Number 6, he doesn't like Netflix. OTT प्लेटफॉर्म आज के टाइम में फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बट इट लुक्स लाइक नोलन इज नॉट अ फैन ऑफ दैट। 2017 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, Netflix has a mindless policy of everything having to simultaneously streamed and released. वैसे देखा जाए तो नोलन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्म तो बनाते नहीं, बट वी कांट डिनाई दैट इन प्लेटफॉर्म्स के कारण फिल्मों का रीच बढ़ता है। Number 7, he wants to direct a James Bond film. मीडिया में कई सालों से ये बात हो रही है कि क्रिस्टोफर नोलन शायद जेम्स बॉन्ड की फिल्म डायरेक्ट कर सकते हैं। $20 says you're going to direct the next Bond movie. $20. $100? What do you want to do? I'm a working man. I couldn't possibly take a bet like that. उन्होंने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है कि उन्हें मौका मिले तो वो जरूर जेम्स बॉन्ड की फिल्म डायरेक्ट करेंगे, बट उनके लिए ये शर्त है। And I would imagine you'd want to be involved in casting your Bond. Well, everything. I mean, you don't, the thing, you wouldn't want to take on a film not fully committed to what you could bring to the table creatively. So as a writer, casting, everything, that's the full package. I mean, भाई नोलन है वो, इतना तो डिजर्व करता ही है ना? Number 8, he almost starred Cillian Murphy as Batman. जब क्रिस्टोफर नोलन बैटमैन बनाने की सोच रहे थे, तो वो चाहते थे कि कोई नया एक्टर इस रोल को प्ले करे। He met with a lot of new and talented actors, और उनमें से एक थे किलियन मर्फी। किलियन ने बैटमैन के लिए स्क्रीन टेस्ट भी दिया था। We also had Cillian Murphy's screen test for Batman. Who was with Falcone at the docks? और वो बैटमैन बन ही जाते, फिर क्रिश्चियन बेल आ गए और सब कुछ बदल गया। Christian, somehow he'd figured this out before the screen test, that you could not give a normal performance. You could not give an ordinary performance. You had to project massive energy through this costume in order to not question the costume. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. And he became the Batman that we needed. किलियन को स्केयरक्रो का रोल मिला and he played the villain in Batman Begins. खैर, ये बस एक शुरुआत थी एक लंबी पार्टनरशिप की, बिकॉज किलियन और नोलन ने काफी फिल्मों में साथ काम किया and now he is in the lead role of Oppenheimer. Number 9, Oppenheimer is the first black and white IMAX film. We all know that Oppenheimer के कुछ scenes black and white में हैं, which makes it the first ever black and white IMAX film. Number 10, he hasn't won an Oscar. क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में हमेशा टॉप क्लास की होती हैं, पर ये भी सच है कि उन्हें आज तक एकेडमी अवार्ड नहीं मिला। He was nominated for his film Dunkirk in 2018, बट उस साल भी नहीं जीत पाए। होपफुली ओपेनहाइमर से ये बदले और नोलन भी एक एकेडमी अवार्ड जीते हैं। वैसे तुम लोग बताओ यार, आज के टाइम में ऑस्कर इतना मैटर करता भी है या नहीं? Number 11, his wife has produced all of his films. क्रिस्टोफर नोलन की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एमा थॉमस से कॉलेज में मिले और कुछ टाइम बाद ही उन्होंने शादी कर ली और फिर शुरू हुआ एक अटूट पार्टनरशिप, न सिर्फ लाइफ में बल्कि करियर में भी। एमा ने नोलन की सारी फिल्मों को को प्रोड्यूस किया है, ऑल द वे फ्रॉम फॉलोइंग। एक मिनट, फॉलोइंग भी नहीं, उससे पहले नोलन ने एक शॉर्ट फिल्म बनाया था, डूडलबग। यू कैन से दैट शी इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड नोलन्स क्रिएटिविटी। Number 12, his brother Matthew. इस वीडियो में हमने कई बार क्रिस्टोफर नोलन के भाई जोनाथन नोलन के बारे में बात की, पर शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि उनका एक बड़ा भाई भी है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मैथ्यू नोलन की, जो क्रिस नोलन से बड़े हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, वो अपने आप को ओपेनहाइमर बुलाते हैं। एक्चुअली मैथ्यू इज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ हिटमैन और उनका कोड नेम ओपेनहाइमर था। He was also arrested in 2009 for the murder of accountant Robert Cohen in Costa Rica, but इस मामले में कोर्ट को sufficient evidence नहीं मिला। Damn, एक भाई फिल्में बना रहा है और दूसरे को खुद फिल्म बनने का शौक है। वैसे मज़ा आएगा अगर क्रिस नोलन अपने भाई के ही ऊपर एक फिल्म बनाए। तो that's it, ये सारे फैक्ट्स जो हमने बताए ये न्यूज़ रिपोर्ट्स पे बेस्ड हैं। उन सब का लिंक डाल दूंगा मैं, तो खुद चेक कर लेना। ऐसे और भी कंटेंट देखने हैं तो हमारा रीच बढ़ाओ यार। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो इस वीडियो में एम करते कम से कम 100 लाइक के लिए। आई थिंक हो जाना चाहिए। और तुम्हारे पास भी कुछ आइडियाज़ हैं तो कमेंट में बताओ, हम बना देंगे वीडियोस पे।